Hello everyone. So we're here with the DFSK Series 3 की गाड़ी EV, all electric EV. ये CKD version है and this has a very beautiful interior. It looks really nice. The interior, the color, ये beige color में आ रही है. CKD है और black steering, black buttons, black piano in the center. और ये यहाँ पे दो वायरलेस चार्जिंग के उन्होंने पोर्ट्स भी दिए हुए हैं. AC वेंट्स हैं. दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन. इट्स अ 5 सीटर और बड़ी अच्छी स्पेशियस गाड़ी लग रही है. यहाँ पे हम शोरूम में आए हुए हैं, इस्लामाबाद के शोरूम में. 6 एयर बैग्स के साथ है. पैनोरामिक सनरूफ. तो ये हमारा फर्स्ट लुक है ऑफ दिस कार DFSK सीरीज 3. और इसको हम स्टार्ट करते हैं. So it's ready to drive. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और एंड तक देखिएगा जानने के लिए कि 1 किलोमीटर पे ये कितना कंज्यूम करती है. तो ये ईवी है, ऑल इलेक्ट्रिक है, 93% चार्ज्ड है. इस वक्त 327 किलोमीटर्स वो दिखा रही है. ये जो है इसकी बैटरी पावर पैक है 54 किलोवाट आवर्स. द रेंज जो ये बताते हैं वो 400 किलोमीटर है. तो वो तो बहुत ज़बरदस्त रेंज है. फिर अभी आजकल नई पॉलिसीज़ भी आ रही हैं, जैसे ईवी चार्जर्स भी और लगते जा रहे हैं पाकिस्तान में. तो और इससे और बेहतरी आ जाएगी. तो अगर आपने ईवी लेनी है तो ये इस वक्त इसकी प्राइस है 84 लाख्स. रोड प्राइस देखनी पड़ेगी उसमें और क्या ऐड होता है. और दिस इज़ अ वेरी नाइसली बिल्ड कार. कलर बहुत पसंद आया मुझे इंटीरियर का. जो बेज सा है, द बटन्स आर रियली नाइस. बहुत अच्छे वो मैट फिनिश में है. बड़ी अच्छी फिनिश आ रही है, आउटलुक आ रही है. इसका थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. जो गियर नॉब है क्रिस्टलाइज्ड है. दीज आर द कीज. सो दिस इज द सीरीज 3 DFSK lock unlock. this the this is the infotainment system. यहाँ पे AC controls, Bluetooth, music and then there is the AC control. इसमें detailed AC controlled है. fan speeds है, heated seats है इसके अंदर. Then there is a rear glass defrost and the front defrost. Internal view. This is the filter, auto and then the different. फिर उसके बाद आपके पास home पे different चीज़ें आ जाती हैं. Navigation है, the 360 camera, USB music, AC, radio, gallery. Then car auto है, DVR भी है इसमें, DAB plus है, speed play है. Let's check out the 360 camera. So 360 camera इसका ये काफ़ी clear अच्छा 3D view है of the car. And then let's see if we can change the colors of the car. So we cannot change the colors of the car. This is the rear camera. ये लेफ्ट पे इसका 360 तकरीबन MG की तरह काफ़ी मिलता जुलता है. साइड वाले व्यूज़ जो हैं काफ़ी सही तरह से अलाइंड है. तो नज़र आता है कि किस तरह से स्टीयरिंग मूव कर रहा है एंड ऑल ओवर दैट. सो अगर ड्राइवर क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं विच वी कैन गो थ्रू. सो टायर प्रेशर वार्निंग है. द एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है. इसमें टायर प्रेशर वार्निंग का साइन भी आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. सो ये यहाँ पे टॉगल हो रहा है विद दिस बटन अप एंड डाउन. देन वी कैन फर्दर. So lane departure, language, trip, illumination, theme set, overspeed warning, fatigue driving set, units भी आप चेंज कर सकते हैं if you want to. ओके का बटन दबाएं. टेम्परेचर का यूनिट, सेंटीग्रेड and then pressure, tire pressure monitoring का, bar PSI, then mileage का, kilometers and mile. Then there is no consumption वाला, I think वो उसमें ही चेंज हो जाएगा. Maintenance का है and then restore and then you can press the
left button here again. So this is the left button. If you go through this, and we can see the different menus. ये जो है on the right side is the audio controls, phones, the modes for the infotainment system. This is the FM, and we can put it to mute as well again. And then we have traction control, downhill assist, mirror adjustments, auto fold, and manual headlight lamps. Auto sensing, speed sensing, locking system, so no need to lock it. All windows are powered, and then you can also turn it off, lock the windows as well. The center console is really nice. There's a lock over here, so you press this and then we can open this. Let's see if it's storage. It's not a cool box here, not a cool box. The glove box is very simple as well. There's cup holders and no USB ports as such. So there's the auto hold. The fan speed can be adjusted from here. The temperature can be adjusted. Drive modes. So let's click the drive modes. So there's the eco mode. There's the sport mode, and then there's the normal mode. Okay, and this is the radio settings of the infotainment system. We can of course change this to AM, bookmark, FM. For the modes, we can again go here and then change that. So this is Wi-Fi enabled as well. So we have Wi-Fi, we can have a hotspot enabled as well. And then again, we can go to the home screen, connect anything. So this is a very nice infotainment system as well. So now let's take a look outside. So we need to turn it off first. Yeah. So these are 6-way adjustable seats. Six-way adjustable seats. Speakers. Nice leg room at the back. Rear AC vents, as well as I think that's that's not a USB port. इसके बोर्ड चेक करते हैं. टेल गेट इलेक्ट्रिक नहीं है. सो ऑफकोर्स वो EVs में होता है कि यार इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं देना चाहिए बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ बैटरी. सो देर आर ड्राइविंग असिस्ट के भी फीचर्स हैं इसके अंदर. नीचे वो सेंसर है कि नहीं है, नहीं सेंसर नहीं है, लेकिन 360 कैमरा है. ऊपर लेन डिपार्चर कीपिंग के लिए कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं. और 360 कैमरा है. इधर साइड मिरर्स के नीचे भी है. एंड देन देयर वुड बी वन एट बैक एज वेल, पीछे भी है. ठीक है. और ये आउटलुक है. टायरों की प्रोफाइल्स अच्छे रिम्स लग रहे हैं. देन उसकी प्रोफाइल जो है, देयर इज़ अ हाइडा टायर और 225 R55 R18 है. अब चलते हैं कॉस्ट कंपैरिजन की तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का और साथ में हैवल जूलियन का. जूलियन हमने क्यों चूज़ किया? जूलियन की प्राइस रेंज बिल्कुल सेम है, तकरीबन ऑलमोस्ट 84 लाख की वो भी है. एंड देन उसका 1.5 टर्बो वेरिएंट को हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कॉस्ट में. और दूसरा ये कि वो दोनों भी SUV में फॉल करती हैं. सो कैपेसिटी की अगर बात करें तो जूलियन की 55 लीटर्स है. सीरीज़ 3 की 54 किलोवाट आवर्स है. रेंज जो वो करते हैं वो 403 किलोमीटर्स करती है सीरीज़ 3, और 605 किलोमीटर्स करती है अगर हम 11 किलोमीटर्स पर लीटर लगा लें जूलियन का. सो दैट्स 605 किलोमीटर्स.
सो अब इनकी चार्जिंग और रीफिलिंग की तरफ आते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर कि हम बात करें तो घर का एक रेजिडेंशियल यूनिट जो बनता है वो 60 रुपीज़ का बनता है ऑलमोस्ट पर किलोवाट आवर्स। यानी कि मैंने ये लेस्को का देखा हुआ है, आईएसको का भी ऑलमोस्ट सेम है और इसमें सारे टैक्सेस मिला के ये 60 तक आता है। और जो ऑन द अदर हैंड फ्यूल 253 रुपीज़ पर लीटर है। सो फुल चार्ज सीरीज़ 3 की कॉस्ट बन जाती है 3200 और उसकी जूलियन की फुल टैंक की कॉस्ट बन जाती है 13,915। सो अगर इनको डिवाइड करें विद द रेंजेस रिस्पेक्टिव रेंजेस तो कॉस्ट फॉर सीरीज़ 3 बन जाती है पर किलोमीटर 8 रुपीज़ पर किलोमीटर और जूलियन की बन जाती है रुपीज़ 23 पर किलोमीटर। सो ऑन एवरेज जो साल में एक गाड़ी चलती है वो चलती है 25,000 किलोमीटर। तो इन दोनों का 15 रुपये का डिफरेंस है पर किलोमीटर, तो वो बन जाता है 3,75,000 की सेविंग्स थ्रू आउट द ईयर। जो कि आप अगर 5 साल गाड़ी रखते हैं तो तकरीबन 18 लाख रुपए की सेविंग हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आ जाता है और दूसरा एक और भी इसमें फ़ायदा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कि उनकी मेंटेनेंस थोड़ी-सी कम प्राइस ही है। सो आपको ऑयल और ऑयल फ़िल्टर की कॉस्ट नहीं पड़ती, सिर्फ एयर फ़िल्टर की कॉस्ट पड़ती है। एनीवेज़ वी विल ब्रिंग दैट इन अनदर वीडियो जिसमें हम ईवीज़ की और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द कंपैरिज़न और काफ़ी अच्छा एक इलेक्ट्रिक सीरीज़ में सीरीज़ 3 की काफ़ी अच्छी प्राइस नज़र आती है और इट्स अ गुड कार टू ओन इन पाकिस्तान, स्पेशली आपकी ये सेकेंडरी गाड़ी है। तो वी विल मेक अनदर वीडियो कि ईवी कब लेनी चाहिए और उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much for watching and please give your feedback and comments in the comments below. Thank you.